we can get going. Yes, sir. So, good morning, everybody, and welcome to our masterclass on the Great Family Business Debate with Professor Samish Dalal. Professor Samish Dalal specializes in the field of negotiation, marketing, and entrepreneurship. Sir has trained more than 5,000 family business students and has a touch base with more than 800 Indian family businesses. He has done his MBA from University of Queensland and he has also studied at Harvard Business School. He is also an TEDx speaker and has trained more than 4,000 undergraduate and postgraduate students for career planning. Good morning, sir, and over to you. Thank you very much, Deepal Madam. Thank you very much. It's a wonderful Sunday to get you on this, and I'm very glad for a wonderful introduction. Thank you, sir. So, my camera is off, I suppose, and that's my mistake. Yes, sir. How are you? So fine, sir. Okay, perfect. So I request everybody to please turn on your cameras, guys. I request everybody to please turn on your cameras. It would be nice to see all the participants present, guys. There was a specific reason why we have this type of a seminar in a mode of a meeting mode rather than a simple webinar mode wherein we have a one-way delivery. So it would be nice. Thank you, Hitesh Bhai. Thank you very much. Thank you, Ronak. Thank you, Piyush, for being present with the camera on. I would request everybody to please turn on the cameras. It would be very interesting. So thanks, Anant. Thanks very much. Thanks, Gaurang. I love the backdrop of the space there. Thanks, Krupa. Thanks very much. Parag, thank you very much. Guys, yeah, very interesting. What had been my and Deepal Madam's debate is that, sir, when we're going to have this session, are we going to have it in the webinar mode or the meeting mode? And she told me that, sir, it will be better that we have in a more of a dialogue manner. So I said, okay, let's have a meeting mode. So thanks, Krupa, for being there on the screen. Prithviraj Ramakhyani. Okay, thanks, Beta, very much. Thanks very much for being there. Okay. Gaurang Mangla, thanks very much. No, it's Parag. Parag Mangla, thanks very much. Ayush Jain, thanks very much, Beta. Thanks very much. I'm very delighted to have you guys with the screen on. All right, anyways, so welcome to this wonderful session on the Great Family Debate. And trust me, guys, I have been enjoying this topic over last couple of months, you can say, or times that you can say. Okay, but before I divulge into the question, I want anybody to be little vocal is what is the Great Family Business Debate? I mean, should I join my family business or not? How many of you say, yes, I should? You can write in the chat box or you can unmute yourself and then speak up also. How many of you say, yes, I should join my family business? Come on, guys, start typing in the chat box quickly. I'll look at response. Quick. Push, please turn on your camera. Piyush Jain, please turn on your camera. Tanveer, please turn on your camera. Darshan, Isha, okay. Akash, yes, please turn on your camera. Kishorji Shah, please. Amrit Sethia, Gautam, Shian Bansal, please. Okay, I got some responses. It will be interesting to see. Tanvi Nathani says, yes, my son should. Yes, I should. It depends on whether it drives you or not. Piyush Bansal, fantastic. It drives you or not. Gautam says, yes, it does. Fantastic. Guys, come on. Amrit Setia says 100%. Parag Mangala says, I already have. Oh, that's nice, Parag. Nice to have a response like that. I already have. I have already joined since 2 years. That's what Prithvi Raj says. Okay, one indirectly becomes a part of the family businesses by growing up in a family which has a business. Correct? Anant Tyagi, absolutely correct. Brilliant. Very good. Anybody else? Yes, definitely. Isha Virmani. Arey Isha beta, but then screen band karke response mat karo. I would like to see you. It's nice to see people and then talk rather than simply be on a passive side. Come on, guys. So, guys, what is in it for you in the session today? Let's get to that. एंड पर्पस समझने की कोशिश करते हैं कि why this whole idea about this debate. So many times we are driven to a family business. Very recently, अभी मैं परसों की बात कर रहा हूं, अपने एक स्टूडेंट को मिला था एंड उससे बात करते करते मेरे को बोलता है कि सर हमारे बिजनेस में बहुत स्कोप है. मैं तो वेरी गुड बेटा, दैट्स सो नाइस टू हियर.
तो नेक्स्ट टाइम उसने बोला कि सर हम तो एफएमसीजी में हैं, तो हम लोग तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ब्रांड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ब्रिलियंट, वेरी गुड। एंड बोलता है कि सर चाचा भी अलाउ करते हैं, पप्पा भी अलाउ करते हैं, इस बार तो दादा ने भी हाँ बोल दिया है। बोले ये तो और भी अच्छी बात है। एंड देन दी फाइनल गूगली, यू अंडरस्टैंड दैट गूगली राइट नाउ? ऑब्वियसली क्रिकेट तो देख रहे हैं आप लोग, 5 दिन का क्रिकेट 3 दिन में खत्म हो रहा है। सो यू नो लाइक द फाइनल गूगली इज, बट सर मेरे को नहीं जम रहा है। क्यों नहीं जम रहा है सर? इनफ प्रोफेशनल्स है ना, इनफ प्रोफेशनल्स है, इनफ प्रोफेशनल्स है, सबके पास काम है, मेरे पास खाली खाली ऐसे बिठा दिया है, तो फिर मेरे को लगता नहीं कि मेरा कुछ इसमें रोल है, मुझे कुछ इसमें कुछ फायदा है। गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये जो बंदे का क्लेम है वो राइट क्लेम है? There are enough people in the family business, and perhaps there is no more scope to do anything significantly as of right now. So therefore, that person goes slightly 2 feet, 2 steps backward. And इतना सब कुछ प्रो होने के बाद भी वो प्रोएक्टिवली आगे नहीं जा रहा है। How many of you think ये लड़के का जो क्लेम है, ये लड़के का जो थॉट प्रोसेस है वो सही है? Come on guys. How many of you think that way? That the thought process of this boy is perhaps a correct thought process? I can see Prithvi Raj Ramakhani typing something in the computer. I would like response from everybody, guys. Let's make it more participative. नहीं तो क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा कि मैं एक भाषण दे रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, and you will not enjoy being a part of it. Okay, let us give you an experience of practically the entire class. Okay, Anand Tyagi says perhaps incorrect. ठीक है, good point. Perhaps incorrect. Anybody else? Anybody else? Anybody else who would like to voice an opinion on this? Maybe he should explore more avenues. Okay, Piyush Bansal says you can always contribute and make a change in your family business. ठीक है, within that business. ठीक है, Anant, fantastic. Anybody else? Anybody else? Anybody else? I don't think his thought process is right. Since he's equally the owner like everyone else, he has to take the onus. ठीक है, Prithviraj, I agree. I agree. Gaurang says it's okay, correct. Depends on the kind of exposure he has. Ronak, fantastic, super. Guys, इस केस को आगे बढ़ाते हैं। फैमिली में डिस्कशन हो रहा है, एफएमसीजी का काम हो रहा है, ब्रांडिंग के लिए अलॉटमेंट किया गया है। द अमाउंट अलॉटेड फॉर द ब्रांडिंग इज रफली टू द ट्यून ऑफ 150 crores. ब्रांड एम्बेसडर को हायर करने का है, सब कुछ अपने पेस पे चल रहा है। दे हैव अ प्रोफेशनल टीम दैट इज डूइंग एवरीथिंग, एंड दिस बॉय इज गेटिंग सफोकेटेड। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके लिए कोई रोल नहीं है, कुछ काम नहीं है। ओके, कीप दिस इन माइंड। लेट्स गो टू अनदर केस। ये एक लड़का है जिसका एक शॉप है, एंड ड्राई फ्रूट बेचता है, नमकीन बेचता है, लोकेटेड इन मुंबई। एंड वो एक दिन सोचता है कि आई कैन एड मोर वैल्यू टू माई बिजनेस बाय हैविंग मोर प्रोडक्ट्स। ब्रिलियंट आइडिया। सो ही स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग न्यूअर प्रोडक्ट्स। थोड़ा फॉरेन से प्रोडक्ट लेके आता है, थोड़ा इंडियन प्रोडक्ट्स को वैल्यू ऐड कर देता है, ऐसा करके नए प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली यू गाइस नो दैट इट्स अ स्टोर, so people have to come to the store to buy the product. If people are not aware that you have these new products, people are not going to come. So therefore what happens is he decides to get into a little bit of marketing activities. अपने फादर को बोलता है कि डैड, हमारे पास जितने भी लोगों के कस्टमर का डेटाबेस हैं, उन सभी लोगों के मुझे नंबर्स चाहिए. I would like to have a phone numbers of these people. Once I have the phone number of these people, I will be able to perhaps reach out to these people. ठीक है. फादर बोलता है, पर बेटा आज तक हमने कभी किया नहीं. पर डैड, व्हाट इज रॉन्ग इन ट्राइंग? एंड उसके फादर उसको कांटेक्ट देते हैं. सम नंबर्स आर ऑब्वियसली रॉन्ग नंबर्स, तो कहीं जाता ही नहीं है, मैसेज बाउंस हो जाता है. कुछ लोगों का गया, देयर वाज ए स्लाइट चेंज इन द फुटफॉल, then slight change in the footfall, and now he wants to have a proper e-commerce outlet also. थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा लेकिन कर सकता है. उसके फादर बोलते हैं दूसरी दुकान कर लेते हैं, let's not be on e-commerce. Is the father right or wrong? This boy has got into the business, has understood the business correctly. उसके फादर ने प्रोएक्टिवली उसको कांटेक्ट भी दिए हैं. Now
he has understood that okay, कृपा को मैसेज किया, रौनक को मैसेज किया, अनंत को मैसेज किया, गौरांग को मैसेज, श्रीयन, सबको मैसेज गया, मतलब उसके सब कॉन्टैक्ट्स थे, ये सभी कॉन्टैक्ट को मैसेज किया, सब लोग ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, पीपल स्टार्टेड परहैप्स थिंकिंग इट्स अ गुड थिंग, तो उसने जाके नाचनी का वेफर, ये वेफर, क्या कहते हैं, सूखा हुआ फ्रूट्स का वेफर्स, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आया, दे स्टार्टेड बाइंग इट, ग्रिप भी आ गया. नाउ द फादर सेज अपन एक दूसरी दुकान कर लेते हैं, हैविंग न्यू एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट्स. बच्चा बोलता लेट्स गो ई कॉमर्स. ओके, लार्जली बेस्ड इन मुंबई, वेरी लोकल. स्टार्ट थिंकिंग गाइस, इज दैट द राइट अप्रोच? फादर सही है या बच्चा सही है? कम ऑन, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. Ronak says, I feel having an e-commerce will give his store exposure to a bigger market than having a new store. करेक्ट रौनक, लेकिन बेटा ये भी समझना है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, एंड ये समझना है कि फादर बोलता हम तो ज्यादा लोकली थे, तो क्यों अपने को ई कॉमर्स जाना चाहिए, थोड़ा तू कर, मतलब ई कॉमर्स तो मेरे सस्ते में निपट जाएगा, नया स्टोर लूंगा तो मुझे महंगा भी पड़ने वाला है, बट स्टिल आई थिंक ऐसा करना चाहिए. आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, डोंट माइंड अबाउट इट, यू आर अलाउड टू गिव ए गुड काउंटर. एनीबडी एल्स? आई एम एंजॉयिंग रौनक, फैंटास्टिक कन्वर्सेशन. Anybody else? Anybody else? Anybody else? Parag, what's your take on this? बेटा तुम तो स्क्रीन बंद कर दी है. Parag, what's your take on this? Gaurang, what's your take on this? Ayush, what's your take on this? Prithvi, what's your take on this, beta? Piyush, what's your take? Come on, guys. Akash, what's your take on this? Amrit says he can start a new vertical. Brilliant thought, Amrit. Point noted. Interesting idea. Very good. Very good. Not possible for me to objectively say who is right or wrong. Correct. Maybe it's about finding out who is more correct and who is little less correct. Both options could work. अनंत बेटा, इतना डिप्लोमेसी कहाँ तुम कर रहे हो? इतना डिप्लोमेसी, मतलब लोग डिप्लोमेसी की हाइट को पकड़ते हैं तो उसके ऊपर बैठ के हैं. ओके, यहाँ पे ना उसके बाप को बुरा लगेगा ना बच्चे को बुरा लगेगा. आई टेल यू द रियल स्टोरी ना, ये कहानी तो है नहीं, सब मेरे स्टूडेंट है. So I'll tell you what actually also happened. Don't worry about it. Take a stand. कि क्या होना चाहिए? Imagine yourself in the place of that. It's a good thought. See why this whole debate? मतलब ये जो दुविधा है, जो the questions हैं, is what is requiring everybody to think whatever is happening, however the outcome is coming. That's the whole idea. Good, very good. Anybody else? Okay, Amrit said a corporate gifting, brilliant idea. Amrit said, yeah, very good. Tanvi, both are right according to each perspective. Shall need to share and discuss with each other. Very good. I feel e-commerce might let him scale faster than a new store. Okay. I feel e-commerce, Gaurang says, I think it's 2021, e-commerce is cheaper, obviously cheaper. Yes, Prithviraj, it's some cheaper. As a larger approach with the same money for a new shop, he can make much larger revenue. Plus, the entire world is moving now online. Wrong, e-commerce will give his business more exposure. And also let to know that I would like to personally go online. That's what Anant Tyagi is now trying to come to conclusion. Third story. We had one wonderful girl. Okay. The father took her to a plant. The plant has only male member. It's a very, very hard industry, very tough industry, very strong industry. क्या कहते हैं, foundry type का industry, heavy machinery industry. I hope you guys relate with whatever I'm saying. Okay, can I just see a thumbs up or a head nod, please? Can I see just a thumbs up quickly? Thanks, Anand. Thanks very much. Thanks, Prithvi. Thanks very much. Thanks, Piyush. Krupa, thank you very much. Okay, you are the one that inspired me to tell this story. So thank you. Ronak, बेटा physically करने, और तेरा emoji कहाँ मेरे को दिखा रहा है? You know, I am right now on 2 screens. So मेरे पास तुम 50 लोग भी हैं और मैं 50 लोगों को एक साथ देख सकता हूँ. Just imagine that. Yeah. I enjoy only talking to a larger class. मतलब मेरे क्लास में 25-30 जन होते हैं, मेरे को भी लगता है कहाँ यार, मतलब इतना तो सर्कल बना के बैठ के बात कर सकते हैं ना. So you know, like that should be like okay, wonderful thing. So are you following what I'm trying to say? Okay, it's a hard industry, foundry type ka industry. Gaurang, are you following what I'm saying, beta? Fantastic. So okay, let's continue. तो ये लड़की को वहां लेके जाते हैं, सब लोग उसको देखते हैं, अरे बाबूजी कहाँ बच्ची को लेके आए हो, अरे बाबूजी कहाँ बच्ची को लेके आए हो. Father also thinks
टू सम कि कहां मैं इसको ये सब चीजों में डाल रहा हूं. एंड द गर्ल वेरी सिंपली सेज कि डैड आई एम लाइकिंग दिस फाउंड्री बिजनेस, I would like to open one more unit. Said, okay, where do you want to open? No, no, but not with you here. I would like to take over an existing unit which is of this. ऐसा करके उसने किसी का नाम बताया. उसका फादर टोटली शॉक्ड. मतलब आप समझ लो ना, बेहोश होने की कंडीशन में आने वाला था. बोले क्या कह रही है, हम उसका धंधा कैसे खरीद सकते हैं? बोले देखो पप्पा, उसके घर में कोई है नहीं सेकंड सक्सेसर, वो अंकल वैसे ही 62 के होने लगे हैं, उनका धंधा बंद ही होने वाला है, तो लेट अस व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट. नथिंग रॉन्ग इन इट बाय द वे, किसी को ऐसा एक्सप्लोरेशन करने में कुछ गलत नहीं है. उसके फादर बोलते हैं कि हमको बिजनेस टेक ओवर नहीं करना चाहिए, रादर तू अपने बिजनेस में वहां पे जो करना चाहती है वो करना शुरू कर. एंड लड़की बोलती है लेट अस टेक ओवर द बिजनेस. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट अप्रोच? शुड वी टेक ओवर द बिजनेस एंड स्केल अप इनऑर्गेनिकली, या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में घुस के थोड़ा और ज्यादा काम किया जाए? कम ऑन गाइस. Why guys, I'm waiting for you. Chalo, start responding. You guys have the opportunity now to respond. So start responding. I'm waiting for your responses, guys. It will be nice to have your responses. Okay. To take up a business, you get ready made up, made set up for skilled manpower, customer base. First capitalize on what we already have and then expand inorganically. ठीक है Parag, fantastic. Amrit Sethia, fantastic. Anybody else would like to say something on this? Anybody else? Scale up father's existing business. आयुष वो scale up father का ही करेगा business. लड़की बहुत clear है, धंधा यही scale up करना है. लेकिन इनऑर्गेनिकली मतलब मैं आज जहां पे हूं, say for example my output capacity is 100 tons and my current plant capacity is say about 110 tons, तो 10 टन तो मैं वैसे कभी भी बढ़ा लूंगी, ओवरनाइट काम करके भी बढ़ा लूंगी. सो बाजू में एक यूनिट है जो सिंक होने जा रहा है, एंड इफ आई कैन टेक ओवर दैट एक्सिस्टिंग यूनिट इन द करंट कैपेसिटी इटसेल्फ, इमेजिन दैट. Okay, so that is my question, Ayush. Think once more. Okay, Prithviraj, I think it's better to explore and expand in existing business. अरे नहीं guys, फिर समझो guys, look at me, तुम लोग defocus हो रहे हो. Look at me. Prithviraj, तू भी फिर सुन. The foundry business as it is a foundry business, no changes. There is another foundry business तुम्हारे business के another थोड़े दूर पे almost sync होने वाला है. Why? Because the elder generation of that is in a age wherein वो शायद continue नहीं करना चाहते हैं, शायद possibility है. ये लड़की उस अपॉर्चुनिटी को देखती है और बोलती है कि we should take over that business. तो हमारी कैपेसिटी सर डबल या 1.5 गुनी हो जाएगी. नया पूरा प्लांट एंड मशीनरी लगाने जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, सॉरी टाइम ज्यादा जाएगा, खर्चा छोड़ दो, टाइम ज्यादा जाएगा. So that is going to be a beneficial deal. That is how the thinking process of the girl is. I want a response on that. That's my point. I think Prithviraj got it clear, beta. Ayush got it very clear. I hope everybody is very clear with this. Fantastic. Okay, continue. Now response. Okay, now I'll go to Piyush's answer. I think acquiring a new business might get them a larger customer base and better setup, etc. Okay, I personally think that it should opportunity to take the risk. Yes, under the guidance of father. Yes. Tanvir is saying yes. Okay, Ayush now says take over the business. Okay, I think an opportunity they should not miss out. Very good. Krupa, I was waiting for your response. I think they should acquire the other foundry, which in turn would help their business. We'll continue one more story. ओके, आप लोग टेंशन नहीं करना, ऑल स्टोरीज आंसर्स देयर रेडी. ओके, हम लोग वो एक एक के आंसर पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल स्टोरीज पे जाते हैं. एक फैमिली बिजनेस कपड़े का, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ इन द फैमिली बिजनेस. द सिस्टर एंड इज एन आर्टिस्ट, द ब्रदर is a very good understanding of purchasing. The story is based in North India.
वो लोग गारमेंट यानी सॉरी फैब्रिक बाय करते हैं. यू अंडरस्टैंड फैब्रिक? एवरीबडी अंडरस्टैंड द वर्ड फैब्रिक? मतलब कपड़ा, लूज क्लॉथ. ओके, and then they do either dyeing or this and that, and then they also have a garment section where they stitch different garments. Say for example ladies के top बनाते हैं, kurtis बनाते हैं. They are into ladies garment basically. Okay, now the third one joins. There are 3 siblings. The daughter is there, the son is also there, elder brother is there. Now the younger brother joins. Younger brother and the father meet me and they tell me that Samish bhai, ये दोनों ने, लड़के और लड़की ने दोनों ने बिजनेस को अच्छा जमाया है. आई डोंट थिंक सो मेरे तीसरे वाले बेटे का रोल अभी मेरे बिजनेस में है. मैं सोचता हूं कि इसको मैं कनाडा भेज दूं पढ़ने के लिए और फिर उधर सेटल हो जाएगा. व्हाट शुड द फादर, मतलब फादर का ये थॉट है, what should be my answer to the father? What should be my answer to the father? What should be my answer to the father? Come on guys, I hope everybody is very clear with the story. मैं फिर बताता हूं. North India, business of procuring fabric, converting into garment, only ladies garments. The daughter is an artist. The son number 1 is good in purchasing. Son number 2 now joins. The father thinks entire business is very well cluttered. So now son number 2 को Canada भेज दिया जाए. I hope you understand that pronunciation. It's Canada, okay? For the North people, it likes Canada, okay? And Canada भेज दिया जाए. And maybe उधर पढ़ के फिर सेटल हो जाए. What should be my response to him? Think about it, okay? अभी आप लोग जो बोल रहे हो मेरे को उधर को क्या जवाब देना था, that's the answer you guys are giving me. Let me see. It's up to the son at the end of the day. नहीं कृपा, अपने को पप्पा को सजेशन करना है बेटा, आप उसके सजेशन को करना है. I'm like father coming and asking a very very genuine query. हम बच्चे पे नहीं छोड़ सकते हैं, हमको पप्पा को बताने का है. बच्चा क्या है, अभी तो अंडरग्रेड कर रहा है, अभी तो अंडरग्रेड कर रहा है, तो उसको शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं. ओके, think कृपा, think बेटा. Rishi, we should always ask the child's opinion about it. अरे that's exactly what Krupa is also saying, कि अपने को बच्चे का ओपिनियन है. बच्चा बोलता है पापा आपको जो ठीक लगे कर दो, पापा को फर्क नहीं पड़ता, अपने कनाडा में चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, उधर भी तो चाचा का घर है ना, सेटिंग हो जाएगा. मतलब कूल डूड है, आप समझो. नॉर्थ घर में ऑलरेडी 2 मर्सिडीज पड़ी है. आई होप अभी तो आपको शायद सिटी का भी अंदाजा आ गया कि मैं कौन सी सिटी की बात कर रहा हूं. पराग का जिस तरह से मुंह ढक के स्माइल आ रहा है ना, मेरे को समझ में आ गया कि बोलता है हाँ सर मेरे को तो सिटी भी पता चल गई. आई अंडरस्टैंड कि बंदा इधर से आया होएगा. ओके, anybody else like, I don't know. If the younger son does not have the required skill set, रौनक किधर गया? अरे बेटा रिक्वायर्ड स्किल सेट अभी तो नल्लू है, कहां रिक्वायर्ड स्किल सेट? क्या पता उसके में उसके दादा के गुण आ जाएं, और दादा उसका एक्सलेंट आदमी था. मतलब वो जब बाल बेचते थे लोग बोलते थे कि साहब जो मंडी में भाव लगाते वही भाव पे चलता था मार्केट. ऐसा था, हो सकता है. नो एनीवेज, let him spend some time in the business and see if he likes, finds, etc. Pranjal Agarwal, be here in practical world and learn by situation. Ask him if also by expanding extra vertical, etc. Leverage the position they have. Then Virji, fantastic. Ayush, if his younger son has interest in the business, he should join the business places and different field related to that. Okay, father to the answer. Prithviraj to detailed answer there. Maybe take the son to the business with you for some time. Give him some area to work on by himself. Let him try in hand. And going to Canada and settling is more difficult. Okay, let's begin, guys. Let's begin. Last story first से story start करते हैं. Family business. This type of dilemma, this type of debate are very very normal things in our class. Are very normal things when we get our students to talk about and discuss. And as we all understand कि कोई भी एक चीज का एग्जैक्ट एक आंसर नहीं होता है.
everybody might have come up with some different answers. The learning along with the people in the batch जो होता है is so phenomenal, जो आज आप अभी experience कर रहे हैं. And हम लोग खाली फैमिली बिजनेस नहीं, इकोनॉमिक्स होता है, फाइनेंस होता है, उस हर चीज को, हर एस्पेक्ट को इतना कोलैबोरेटिवली काम कराते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीबॉडी फॉर अ मिनट. ओके, एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी what your business is and where you are from. Only two things: what your business is and where you are from. Starting with Ronak Kankaria. Ronak, what is your business? Sir, my business is manufacturing of stainless steel tubes under the name of Kesha Deep Tube Manufacturing Company Private Limited, and we are based in Aurangabad. Aurangabad. Fantastic, fantastic. Yes. Piyush Bansal. Sir, our business is real estate development, and we are based out of Ambernath, Thane. Okay, fantastic, fantastic. Prithviraj Ramakhyani. So we are based in Hyderabad, and we are into real estate, and we basically develop properties. Okay. So do you also procure the land and develop, or you only develop? We only develop, sir. We only develop and we trade. We don't procure that. Okay, okay, okay. Ayush Jain, beta, where are you from and what's your business? So we are based on Kolkata and we are into trading business of zipper industry. I didn't hear Zipper the last part. Yeah, zipper industry. Okay, okay, zipper industry. Okay, okay. Gaurang. Good morning, sir. We are located in Indore. We have a manufacturing unit of cotton spinning. We produce yarn. Okay, 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 okay. So you must be, I'm sure you know Sandy. Gaurang. Well, he's called Sandy, Sandeep Agarwal. No, sir. And okay, okay, that's fine, that's fine. And he is based in Indore and also into cotton. And एक दूसरा था कोचर. My father knows. I don't know. Yeah. Obviously, they would be knowing. Okay. Yes, Krupa. Good morning, sir. We're based in Pune and we're manufacturers of starter motors and two-wheeler spare parts. Oh, wow. Fantastic, Yeah. fantastic. Thank you. Great. जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ेगा तुम्हारा तो आगे निकल पड़ेगा. Yeah. We can talk more about it. Yes, sir. Yes, Parag. Good morning, sir. So we are into jewelry retail. It's Okay. a fourth generation business, and we are based out of Faridabad, Delhi NCR. And तुम्हारा ज्वेलरी रिटेल भी फरीदाबाद में ही है? Yes, sir. Okay, fantastic. Faridabad में we opened up a new store. हाँ जी बेटा. It was earlier in Haryana. We have other stores in Haryana. We've opened a new store in Faridabad. Abhi. Okay. Fantastic. Anant, diplomatic Tyagi. Hello, sir. Good morning. Hello. Sir, we are in the business of mustard oil and we are based out of Delhi. Okay. And mustard oil में refinement सब कुछ करते हो कि what do you do? No, sir, we don't do any refined or any mixing of that. Pure mustard oil. Okay. नहीं. And you buy मतलब trade करते हो कि mustard खरीद के refining का process है? Manufacturing. Okay. Manufacture. Okay. Great. Okay. Shriyan Bansal. आवाज नहीं आ रही है श्रीयन जी. Yes, sir. Am I audible? Yes. So we are into retail and wholesale business of diamond jewelry. Where are you based at? Delhi and many parts of Haryana. Okay, fantastic. So guys, the reason I asked you to introduce yourselves is only for one simple reason. कि आप लोग को पता चला कि किस तरह से आप लोग डिफरेंट बिजनेसेस के लोग इसमें आते हो, इन्वॉल्व होते हो, एंड किस तरह से आपने अपने आंसर्स दिए. That's exactly a similar way of how we conduct a class also. And the idea is different people of different businesses जब contribute करते हैं, so class का enrich हो जाता है. And now let us look at the real stories of whatever things that have gone by. Okay. Number 1, वो कनाडा वाला लड़का.
सो आई आस्क्ड फादर द मोर क्वेश्चंस, और ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो मेंटली मैंने ऐसे सोच लिया, या फादर ने भी बता लिया कि नहीं, मैं चाहता नहीं हूं कि मेरा बेटा यहाँ पे रुक जाए, बल्कि मैं चाहता हूं एक जन फॉरेन चला जाए. लाइक यू नो द हार्ट ऑफ हार्ट दैट द फादर स्पीक्स आउट एंड लाइक, नहीं दलाल सर बराबर है, उसको भेजने दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बोला सर आप मन बना चुके हैं? बोले आप ऐसा ही समझ लो. आई सेड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. एक काम करिए, मैं चाहता हूं कि आप उसको भेज दो वहां पे, पढ़ने भी दो, और उसको वहां के टेक्सटाइल मार्केट को समझने दो, एंड हो सकता है वी मे एंड अप क्रिएटिंग वन ऑफ आवर कनाडा ऑफिसेस इफ पॉसिबल. आज की तारीख में वो लड़का वैंकूवर में है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, and he is now looking at that side of the business, of the same business that's based in India. Guys, as rightly put by one of you guys, I think अनंत या किसी और ने आगे पहले रख दिया था, डिबेट में कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं होता है, पर अपने को पर्सपेक्टिव मालूम पड़ता है कि सही क्या है, गलत क्या है. ओके, एंड इसलिए ये सीखना जरूरी है कि और सवाल पूछ सकते हो, यदि आप चाहो तो और भी सवाल पूछ सकते हो. मैंने वो फाउंड्री वाला एग्जांपल दिया था, तो मैं उस लड़की के बारे में बताता हूं. कृपा जस्ट बी रेडी टू शॉक्ड. ओके, हाँ हाँ, तेरे को शॉक तो होना ही चाहिए थोड़ा, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें तेरे को थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और तेरे साथ साथ 4-5 जन को और भी हो जाएगा. वो मेरे को गाड़ी में चला रही है, मैं उसके बाजू में बैठा हूं, तो मैंने उसको बोला तेरे हाथ पे, क्योंकि शी वाज वेयरिंग ए टी शर्ट लाइक दिस, तो उसके हाथ पे ऐसा स्कार था. मैं बोला तेरे को ऐसा स्कार कैसे हुआ? तो यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, बोलते सर मैं तो गाड़ी बहुत रफ चलाती हूँ ना, तो एक बार ठोक दिया था तो पूरा हाथ रिप हो गया था, तो इधर पूरा का पूरा ऐसा सब खून बाहर आ गया था, ऐसा हो गया था. सर मेरे तो 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, और मेरे साथ जो बाजू बैठा था उसको भी 2 बार तो लगी है, एंड आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हर, इमेजिन दैट. मैं बोला बेटा मेरे को पहुंचा देगी नहीं? सर 100% सर, आपकी ट्रेन कितने बजे? 6:30 को है ना, आप आराम से 6:30 को पहुंच जाएंगे. इट्स 6:20 एंड आई कैन सी अ ह्यूज ट्रैफिक लाइन राइट देयर. मतलब मेरी ऐसी फटी पड़ी हालत है. ओके, दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उसको एक प्रोजेक्ट दिया था, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया था, सामने वाला आदमी थोड़ा बुलडोजर टाइप का आदमी था. उसके फादर ने बोला बेटा छोड़ दे पैसा. ये लड़की उसके पास गई, कलेक्शन किया, उसने उसको कुछ भी बोला, ऐसा तैसा बोला, ये लड़की ने सामने जवाब दिया. वो भाई साहब ने इसको, उसके पापा को फोन किया, साहब नेक्स्ट टाइम आप पेमेंट कलेक्ट करने आना, आपकी बेटी को मत भेजना. मेरे को लगा कि बेटी है, शांति से बैठ जाएगी. मेरे अकाउंटेंट को डरा दिया, बोला कि मैं इतना माल लेके चली जाऊंगी, बाहर ट्रक खड़ी करके रखी थी. मतलब इतनी दादागिरी करती है. इट इज नॉट दादागिरी, सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा ऐसा होता है, तो कभी ऐसा अप्रोच लेना होता है. अब ये लड़की के प्रोफाइल को हमको उसको नई कंपनी एक्वायर करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पीयूष बंसल स्माइल कर रहे हैं, हाँ सर करने दो, ना बोलेगी तो पप्पा की लगा देगी. करेक्ट है, आई कैन सी द सेम स्माइल ऑन कृपा's face as well. करेक्ट है गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट है. डिड दे टेक ओवर? दे डिड टेक ओवर. और कन्विक्शन पॉइंट ये था कि फादर ने बोला कि पण तू रन करेगी? हाँ पापा मैं ही रन करूंगी, ऑब्वियसली मेरे नाम पे आप खरीदो उसको. ओके, एंड वन मोर थिंग, फ्यूचर में कभी शादी हो गई एंड इफ आई गो टू द इन-लॉज फैमिली, मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलूंगी कि दिस इज माय बिजनेस, इवेंचुअली इट कैन बिकम अवर बिजनेस बिकॉज माय फादर डजंट हैव अ से इन दिस. उन्होंने जो पैसा दिया है पार्शियली लोन एंड पार्शियली मेरा कैपिटल है, तो नो प्रॉब्लम, वी कैन रन दिस बिजनेस. Guys, she's married I think 1 year and she's already running that business. उसका हस्बैंड अभी तक उसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी एक फैमिली बिजनेस चल रहा है, बट मे बी इवेंचुअली दे माइट गेट टुगेदर ऑन दैट, और इट्स चलती रहेगी. ओके, रिमेंबर दैट गाइस, कि जब अपन कोई सजेशन करते हैं, कोई डिबेट करते हैं, कोई थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज आते हैं, तो व्हाट आर दी अदर पैरामीटर्स दैट ड्राइव टुवर्ड्स ए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है. गाइस, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा सिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा सिखाते हैं. मेनी ऑफ अस थिंक वेरी वेरी सिंपल कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए. फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज अ कॉज, लीनियर प्रोपोर्शन में, ऐसा है तो ऐसा होएगा. खाना खाएंगे खाली पेट होएगा, डकार आएगी. नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. ऐसा नाक में कुछ गया है तो छींक आएगी. नॉट नेसेसरी, इट कैन गेट ब्लॉक्ड ऑल्सो. एनीथिंग कैन हैपन. ओके, या फिर स्नीज आने के कितने सारे रीजंस हैं.
in family business learning, we understand one very important fundamental. The effect is a result of not one, but multiple factors working to get that result. Not one, but multiple factors working to get that result. Many of us think कि फैमिली बिजनेस एक ऐसा जरिया है जिसमें हम लोग ये करेंगे तो यही होएगा. नो, रादर हम लोग जो करेंगे शायद इट इज नॉट परहैप्स मैचिंग ऑल्सो, नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो, लेकिन समथिंग एल्स रिजल्ट आ जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. यस्टरडे वी वर टॉकिंग टू वन कंपनी, एंड उस कंपनी में बात कर रहे थे. वो लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग हैं औरंगाबाद बेस्ड कंपनी है, जालना बेस्ड कंपनी है, और हम लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. लेकिन हमने पहले ये ट्राई किया बॉम्बे में, लेकिन फेल हो गए हैं. हम लोग नागपुर जाना चाहते हैं. हमने बोला कि कौन सी स्ट्रेटेजी ट्राई करोगे? बोले वही स्ट्रेटेजी ट्राई करेंगे. हमारा सिंपल क्वेश्चन था, यही स्ट्रेटेजी फिर ट्राई करोगे तो कैसे सक्सेसफुल रहोगे? तो इस कि हम थोड़ी और एनर्जी लगाएंगे. तो एनर्जी ज्यादा लगाने से स्ट्रेटेजी में फर्क नहीं आएगा ना. देन दे सेड कि सर हम और लोग रखेंगे. मतलब दैट्स मोर एनर्जी. क्या चेंज करोगे, क्या डिफरेंट करोगे? एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस, हम लोग को लगभग 1-1.5 घंटा लगा. एंड उस 1-1.5 घंटे में वी केम अप विद 3 अदर फैक्टर्स जिसको शायद हमने इग्नोर कर दिया था. उसको यूज करके उसमें आगे जाएंगे तो परहैप्स रिजल्ट विल चेंज. परहैप्स रिजल्ट विल चेंज. So whenever you start thinking like that, guys, आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि okay, there are multiple factors that affect a business decision. And in a family business, guys, multiple factors का कारण दूसरा है multiple people. आपके चाचा होते हैं, आपके मम्मी होते हैं, आपके दादा होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं. वो जो लड़का जो 150 करोड़ के ब्रांडिंग का, मेरा थर्ड केस स्टडी, या आई एम गोइंग रिवर्स टू थर्ड केस होएगा, लास्ट वाला मैंने पहले केस ले, थर्ड केस स्टडी. जो ब्रांडिंग का खर्चा करने वाला था, उसके दादा ने बोला, अरे उसके पापा ने बोला कि हम लोग तो सब ऑलरेडी लोग फुल हैं. तो उस लड़के ने बोला कि मेरा तो इसमें कुछ रोल नहीं होने वाला है, तुम लोग के पास सब कुछ है. उसके फादर ने उसको सवाल पूछा, तो बेटा हम लोग तो ब्रांडिंग के लिए ये मेथड यूज करने वाले, ये यूज करने वाले हैं, लेकिन तू तो ये GFM भी करके आया ना. हाँ, तो तेरे पास इतना नेटवर्क होएगा, तो why can't we explore developing dealer network through your contacts? पापा ये मैंने सोचा ही नहीं था. हाँ पापा, I'll start 100%. I will start. एंड जैसे उसके दिमाग में ये विचार आया, उसने स्टार्ट भी किया, एंड ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी चेंज हो गया. गाइस, यू नो व्हाट, एक फैमिली बिजनेस में स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी हमको देखनी पड़ती है, आती नहीं है, देखनी पड़ती है. जितना जल्दी हम उसको देख सकते हैं, उतना जल्दी हम उसमें कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग ला सकते हैं. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डू दैट, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट भी नया दिखेगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट भी नया दिखेगा. सो whenever you come across a situation like this, आपको ये समझने का है कि फैमिली बिजनेस में it is not one cause that leads to one effect. Multiple causes lead to one effect. वो सेम मल्टीपल कॉजेज उस वक्त होंगे, डिफरेंट आंसर आ सकता है. Many times people tell me कि सर फैमिली बिजनेस में वन आंसर इसी को मिल जाएगा तो हो जाएगा. गौरांग अपना प्रश्न लेके आता है, वो इंदौर से है. फिर अभी दूसरा पीयूष बंसल है, वो रियल एस्टेट का है, लेकिन वो कोई और सिटी से है. लेकिन पृथ्वीराज हैदराबाद से है. दोनों डिफरेंट, सेम बिजनेस में है, डिफरेंट लोकेशन पे हैं. दोनों के क्वेश्चंस, दोनों के पर्सपेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का सिनेरियोस कंप्लीटली डिफरेंट. एंड देयरफॉर फैमिली बिजनेस में कोई एक व्यक्ति ऐसा साइज फिट्स ऑल नहीं होता, हर एक व्यक्ति का केस डिफरेंट हो जाता है. And because हर एक केस डिफरेंट हो जाता है, it adds tremendous value to a class learning, cohesive learning. आज हम लोग देखते हैं क्लास में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इतना इंटरेस्टिंग होता है. Yesterday I was talking to one student. तो उसने बोला कि मैं अपने कंपनी का नया लोगो बनाने जा रहा हूं. Why? Because हम लोग नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं. तो बाजू में एक लड़का बैठा था whose business is advertising. बोलता है, ब्रो
तू जिस डब्बे को आइडेंटिफाई करा जिसमें तेरा प्रोडक्ट भरने वाला है उसका प्रिंटिंग कराएगा या ब्रो, बट मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन प्रिंटिंग कराऊं, महंगा पड़ेगा तेरे को। हाँ महंगा पड़ेगा, ऐसा वाला कर, वो जो फिल्म लगाते ना वैसा वाला। ऐसा डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन में मैं भी सुन रहा था, मैं बोला कि बट व्हाई आर रिकमेंडिंग दैट सर, स्क्रीन प्रिंटिंग में टूट जाएगा सर, ये क्वांटिटी जो बोल रहा है उसमें उसको अफोर्ड ही नहीं होना है। नाउ दिस इज समथिंग दैट ए आउटसाइडर माइट नॉट टेल यू। क्यों? क्योंकि आप प्रिंटर के पास जाते हो तो उसको तो उसमें फायदा है, आपसे कमाने को ज्यादा मिलेगा। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रो ये डिजाइन कैसी लग रही है? डिजाइन बहुत बढ़िया है लेकिन 2 कलर रिड्यूस कर दे। क्यों? तो 6 कलर के ऊपर जाएगा ना, इसलिए कंपलसरी तेरे को ये जो मैं ये जो स्टिकर वाला मेथड बोल रहा हूं उससे भी एक हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, तेरे का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा। गेम चेंज। सिर्फ 2 कलर कम कर दे, तेरे को इसमें बहुत सस्ता पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू डू द प्रोडक्शन ऑफ दिस डब्बा एट डिफरेंट लोकेशन आल्सो। इमेजिन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, and this is where the family businesses are growing. आज फैमिली बिजनेस ग्रो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एकदम ओपन माइंड से ग्रास्प करते हैं, सीखते हैं। उनका हंगर टू ग्रो, हंगर ग्रीड, मैं तो बोलता हूं हंगर भी नहीं ग्रीड है। और ग्रीड देखा देखी का नहीं है, ले कृपा ग्रो हो गई, मैं लटक गया, चलो मैं भी भागता हूं उसके पीछे, पागल हो गया है। इसने ऐसे ग्रो किया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे करके कर सकता हूं। जाने के कितने सारे इफेक्ट लाने के इतने सारे तरीके, कॉज बदलता रहता है, कॉज बदलता रहता है। सो ऑलवेज आइडेंटिफाई कि मल्टीपल कॉजेज आपको वो रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रौनक ने जो कॉजेज यूज किए हैं वो कृपा यूज करेगी और दोनों का इफेक्ट सेम आएगा। दोनों का इफेक्ट कंप्लीटली रेडिकली डिफरेंट आ सकता है। So always understand this कि a family business is, should I be a part of family business? एक बहुत पुराना डिबेट है एंड उसमें से बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं लोगों के कि हाँ द बिजनेस इज टोटली फुल, बिजनेस में ये नहीं है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में शायद स्कोप नहीं, बिजनेस में लर्निंग का अपॉर्चुनिटी नहीं, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। द आइडिया, रियल आइडिया ऑफ बिजनेस ग्रोथ comes from being a part of the family business by entering into it wholeheartedly. और अभी आप लोग बोलेंगे सर होल हार्टेडली को बहुत बड़ा वर्ड थोड़ी ना है, होल हार्टेडली मतलब होल हार्टेडली, नहीं 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 नहीं। वेरी फेमस, नॉट फेमस पर एक टाइम पे एक्टर, अभी तो पॉलिटिशियन भी हो गया ना, ऑल दैट थिंग हो गया, शत्रुघ्न सिन्हा। I had one interesting opportunity to meet him on a one-to-one basis. It was a part of a social organization, तो मैं वहां पे था और वो भी थे। फिर उनका एक सेशन था, सेशन खत्म होते हैं वो हम लोग बाहर निकले, उन्होंने एक मस्त लाइन बोली कि सर आप बोल रहे थे कि बिहार से कितने फिल्म स्टार आए। उस वक्त तो बहुत कम थे, अभी तो बहुत ज्यादा हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 20 years बैक की बात कर रहा हूँ, 20 years बैक। या आई एम मेकिंग परफेक्ट सेंस, इट्स अराउंड 2002 की बात हो रही है। 2002 ने, आई थिंक 2001 एंड बहुत कम लोग आए थे उस वक्त। तो बोला कि कितने लोग आते होंगे। फिर उन्होंने एक लाइन बताई मुझे, जहाज को जला डालो। सर मैं समझा नहीं। बोले सब जब मैं बिहार से निकला था ना तो मैंने जहाज को जला दिया था, मेरे पीछे जो मेरे साथ अटैच था उसको मैंने बर्न कर दिया था। आई नो बिकॉज आई कैन नॉट गो बैक, बिकॉज यदि मैं वो स्ट्रिंग पकड़ के रखता तो मैं वापस जाने की सोचता रहता। Joining a family business is exactly like that. I go deep down into and that's it, no looking back. फिर गौरांग जाता है 2-4 साल इतना सखत काम करता है और काम करने के बाद उसके तब तक कोई फ्रेंड होते हैं जो कभी IIT IIM गए, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज गया, कोई ऐसा गया, कोई कंपनी में जॉब करने लगा एंड फिर उसने अच्छी सी गाड़ी भी ले लिया, उसका शायद कुछ चेंज हो गया, उसने कोई स्टार्टअप चालू कर दिया, समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। ऐसा कुछ हो जाता है और अपने को उसको अपने साथ कंपेयर करते हैं। आज की सोसाइटी में लोग बोलते हैं ले गौरांग तू किधर रुक गया, देख तेरा फ्रेंड किधर निकल गया। दैट्स फाइन। फैमिली बिजनेस में अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने में वक्त लगता है, वक्त लगता है।
ये पीयूष बंसल ने एक बात, यू फ्रॉम अंबरनाथ राइट पीयूष? जस्ट नोट बाय सेइंग यस, करेक्ट। मेरा एक बच्चा अंबरनाथ से है, उसका उधर इंडस्ट्री है। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसके बिजनेस में उसके लिए कोई काम ही नहीं था। आज उसके बिजनेस में he has transformed the business और इतना बिजनेस को बड़ा कर दिया है कि there are foreign investors interested to invest in his business. A traditional family business। उसकी वाइफ लॉयर है, उसने नया प्रोडक्ट बनाया तो उसकी वाइफ से के साथ मिलके प्रोडक्ट का पेटेंट एंड कॉपीराइट कराया। उस इंडस्ट्री में ही हैज क्रिएटेड सच अ बेंचमार्क कि लोग उसको बेंचमार्क बना के कॉपी करते हैं, बोले कि इसने किया तो अपने को भी करना चाहिए। इमेजिन व्हाट रेफरेंस पॉइंट ही हैज क्रिएटेड। इमेजिन, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है माय डियर फ्रेंड्स, कि किस तरह का रेफरेंस पॉइंट किया जा सकता है। फैमिली बिजनेस में जब हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब डिफरेंट एस्पेक्ट को समझते हैं और फिर उसका अंजाम की तरफ जाते हैं, तब हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अंजाम ये है, तरीके हर एक का अलग अलग होने वाला है। And to learn from different approaches is what is most important. But for that, get into the family business wholeheartedly. जहाज को जला डालो। If I tie a string with me and then go deep inside, I'll be always at that stage. गड़बड़ होएगा, pull the string, I would like to come out. Pull the string, I would like to come out. Imagine if your fathers, imagine your uncles, your mama, chacha, etc. did that. कुछ ट्राई करते नहीं होता बाहर निकल आते, कुछ ट्राई करता नहीं होता बाहर निकल आते। अरे उनको भी बहुत फेलियर्स आए, बहुत चैलेंजेस आई, बट एवरी टाइम दे वर इनसाइड, दे वर कंप्लीटली एनग्रोस्ड। नो, वी डोंट वांट टू पुल द क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। हम लोग अंदर रहेंगे एंड अंदर रहेंगे तो काम हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट लेसन है आप लोग को। मेरा दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, बी अ पार्ट ऑफ द कोरस फर्स्ट एंड देन मेक अदर्स सिंग योर सॉन्ग। बी अ पार्ट ऑफ द कोरस फर्स्ट एंड देन मेक अदर्स सिंग अ सॉन्ग। अपना आयुष जैन धंधे को ज्वाइन करता है, जिस दिन धंधे को ज्वाइन करता उस दिन अपने पापा को बोलता, पापा मेरे को लगता है ये मिस्टेक बरोबर नहीं कर रहे हो। पापा आयुष को क्या बोलता है, मिस्टेक ये नहीं, मिस्टेक ये। अरे क्या पापा, सवाल ही नहीं है। अब क्या होता है, सब लोग फैमिली में इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आया उस दिन गलती निकाला, जिस दिन आया उसने ये बोला वो बोला। नहीं, जिस दिन अंदर आए धंधे में उस दिन बी द मोस्ट स्टूपिड पर्सन यू कैन एवर। बेवकूफ की तरह रहो। जैसे वो गाना गा रहे हैं वैसे गाना गाओ। सुबह 9 बजे जाते हैं, 9 बजे जाओ। एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ड्राइवर को लाला करके बुलाते हैं, लाला करके बुलाओ। आपको लाला भैया बोलना है तो लाला भैया बोलो। कस्टमर आता है तो बेल बजा के पानी मंगवाते हैं, सेम टू सेम पानी मंगवाओ। चाय के लिए जहां से चाय आती है उसी से चाय मंगवाओ, चाहे वो चाय में एकदम टेस्टलेस हो, बकवास हो, पीने के बाद अपने को लगे साला लोचा हो गया, गले में कुछ फंस गया ऐसा लगता है, ओके, फिर भी मंगवाओ, उधर से ही मंगवाओ। 3 महीने तक उनके राग पे गाना गाओ। 3 महीने के बाद एक दिन पप्पा थोड़े गुड मूड में है, चाचा गुड मूड में है, दादा गुड मूड में है, वही चाय लेके बैठो, बोले दादा चाय कैसी है? अरे घटिया बनाता है, पर तेरे पप्पा को कौन समझाए, कितनी दफा बोला मैं बदल दे। दादा वो मशीन लगा देते ना। अरे बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, चाय तो दिन में 2 अच्छी चाहिए। आपका सुर आवाज देने लगा है, अब गाओ। चाय से शुरू हुआ है, ये आगे अच्छा गीत गाएगा। पहले दिन जाके यही दादा के साथ बैठोगे, दादा चाय तो बहुत बेकार है। वो तो आया तो आज ही है, चाय बेकार हो गई, मम्मी की चाय थोड़ी ना घर में मिलेगी, जाओ बैठो।
अरे बेचारा मुन्ना कितनी मेहनत करता है दिन भर, तुमको चाय पड़ी है, जरा उसका हाथ बटाओ। ओके, अब दादा के लिए तो उसका बेटा मुन्ना ही है ना, अपन तो पोते हैं, तो हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 महीने 4 महीने उनके साथ रहने के उन्होंने देखा कि हाँ गौरांग अंदर घुस गया है, आयुष घुस गया है, दिल से घुस गया है, होल हार्टेडली घुस गया है। अब इसको समझ में आ गया है, बी अ पार्ट ऑफ द कोरस एंड देन सिंग, तुम मेरे हिस्सा हो। अंदर वाला आदमी ने रिस्पॉन्ड किया है। दैट इज द गेम चेंजर, दैट इज द गेम चेंजर। सीधा आके सजेशन करना शुरू करो, डेट्रीमेंटल, will work against you, will work against you. Be a part of the chorus first and then make others sing the song. उसका हिस्सा बनो, हिस्सा बनो। यदि उसका हिस्सा नहीं बनोगे तो आप शायद कभी भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पेरिफेरी पे रहोगे, पेरिफेरी पे रहोगे। Am I making sense to you guys? Are you following what I'm saying? Guys, thumbs up quickly. Can I see a thumbs up? Can I see a thumbs up? Are you guys following what I'm saying? Okay, fantastic, fantastic. And my third and final point, the great family business debate का जो end है वो ये है कि आज कोई भी चीज आइडेंटिटी पे डिपेंड करती है। लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने के जोश में निकल पड़े हैं, मेरे को मेरी आइडेंटिटी चाहिए, मेरे को मेरी आइडेंटिटी चाहिए, इसलिए स्टार्टअप वार्टअप की बात करते हैं। माय थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, अ फैमिली बिजनेस इटसेल्फ इज एन आइडेंटिटी, वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट बिगर। ध्यान से सुनो गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चा लोग उतारो दिमाग में। हमारा खुद का धंधा एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, उसको बड़ा बनाने में मेहनत करो, आइडेंटिटी खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। अपना गौरांग नर्सरिया बोलता है कि मैं ये करूंगा ना, ये बिजनेस है, उसमें मैं कुछ नया करूंगा, तो पता चला नर्सरिया फैमिली क्रिएट्स दिस, ऐसा करके बहुत बड़ा बोर्ड हो गया, नर्सरिया फैमिली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। फैंटास्टिक। कोई बंदे को कार्ड दिया, कार्ड का वजन वो उठा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यू आर गौरांग नर्सरिया, पार्ट ऑफ द नर्सरिया ग्रुप। ओ माय गुडनेस, सोचो कि आपने क्या बनाया। आपने एक छोटे से बंगलों को ताजमहल बना दिया। आपके फादर्स, आपके चाचा, आपके दादा, जो लोग हैं जिन्होंने अपने धंधे में पागलों के जैसा योगदान दिया है, पागलों जैसा योगदान, perhaps they have, what you can say, what's the best word, devoted नहीं, खलास कर दिया अपनी लाइफ, कंप्लीटली खलास कर दी उस कॉज के लिए कि ये हमारा धंधा, हमारा नाम नहीं बने लेकिन फिर भी ये धंधा आगे बढ़ना चाहिए। They have made relationships, they have done a lot of effort in that direction. उसमें फिर आप आते हो और फिर आप उसको और बड़ा लेके जाते हो। इमेजिन देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इमेजिन योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टुमारो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सम BNI, अ पार्ट ऑफ CII का कोई कॉन्फ्रेंस, यंग इंडिया में कहीं गए और वहां पे आपको बोला कि अरे कृपा वेयर आर यू, व्हाट्स योर बिजनेस, एंड कृपा अपने फैमिली बिजनेस का कार्ड देती है। इमेजिन, अरे यू बिलोंग टू दिस ग्रुप, व्हाट डू यू लुक आफ्टर दिस ग्रुप, आई लुक आफ्टर दिस वर्टिकल, this is my brother who looks after, wow, and this is by my चाचा। हमारे करंट बैच का एक लड़का है, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना। वो लड़के के फैमिली में उसके बुआ और फूफा जी भी इन्वॉल्व है, चाचा भी इन्वॉल्व है, but I understand the बुआ वाला concept ने, it's the girl of the family who got married, went away, and then the दामाद is in the business, and उसके family में every second generation does not have the father as the mentor, somebody else is the mentor। तो इधर फूफा जी है या मामा है या चाचा है as the mentor। 43 people are in the business as co-owners in the different businesses। उसका एक कार्ड देते हो ना, इसका एक कार्ड। मैंने बोला बेटा तू ये देखता है, बोले हाँ सर मैं ये देखता हूं।
और मेरे चाचा मेरे मेंटर हैं। मैं सबके कार्ड अलग, नीचे खाली एक ही नाम आ जाता है, आ पार्ट ऑफ दिस फैमिली बिजनेस ग्रुप, दैट्स इट। everybody part of the same thing. Imagine this. कोई अलग ही नहीं है। हमें बोला कि बेटा अलग होने का, अरे सर अलग क्यों हो जाए, वही पुरानी स्टोरी अपनी, सब लकड़ी साथ में है तो तोड़ नहीं पाते। आज हम लोग एकदम लीथल स्ट्रेंथ है टुगेदरनेस में। They are based in Bombay, they are based in Jamnagar, they are based in Junagadh, they are also based in Surat. They are, I think ये 4 लोकेशन तो उसने मुझे बताए थे, और ज्यादा लोकेशन मुझे पता नहीं है। करंट बैच में सब हकीकत है, बट वहां पे वो क्राइसिस नहीं, ये मेरा अपना। अरे कहां यार, आज यदि दीपल मैडम बोलेगी कि ये मैंने ऐसा किया है, नो 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 वे, मैंने किया, मैंने, नो वे, हम सब ने मिलकर किया। सुपर्ब। आज का जो इवेंट भी है, हम लोग 22-25 लोग होते हैं। यदि ये बोलती मैंने अच्छा किया, मैं बोलूंगा मैं अच्छा किया, नहीं, हम सब ने मिलकर इस इवेंट को अच्छा बनाया, हम सब। द डायमेंशन ऑफ फैमिली बिजनेस इज इन टुगेदरनेस। मैं बहुत बार एक सिंपल चीज बताता हूं, विच कुड बी परहैप्स माय वेरी वेरी कंक्लूडिव रिमार्क्स, पर मैं 2 मिनट के बाद उसके ऊपर जाता हूं। एनीवेज, सो मेरा आइडिया ये था कि 3 फंडामेंटल्स को मुझे आप लोग को बताना था कि द ग्रेट फैमिली बिजनेस डिबेट में ये चीज हमेशा याद रखना, नेवर एवर आस्क ए क्वेश्चन व्हाट इज इन इट फॉर मी, लुक फॉर द स्कोप व्हाट इज इन इट फॉर मी, लुक फॉर द स्कोप व्हाट इज इन इट फॉर मी। सब कुछ सही जा रहा है, मैं कुछ उसमें नया कर सकता हूं, किस तरह से नया कर सकता हूं, एंड वो अपना काम है। एक मेरा बच्चा है जिसका फैमिली बिजनेस है लीजिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है, वेरी वेरी कॉमन बिजनेस। अभी उसके फैमिली में जगह नहीं था बिजनेस में, सब कुछ ओके है, एवरीथिंग गोइंग परफेक्टली वेल। हम लोग बैठे थे ये दिल्ली में अमेरिकन डाइनर में, बात करते करते हो गया, तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू कुछ नया तो सोच अपने धंधे में। बोले सर एवरीथिंग इज फुल सर, आई वुड लाइक टू गेट इनटू सम अनदर बिजनेस। तो बुलशिट, इतना बड़ा गुडविल, इतना बड़ा लीगेसी, कुछ तो सोच। अब भी मिला था लास्ट वीक जब मैं दिल्ली था, गॉट इनटू लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पिछले 1.5 साल में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया कि उसका पूरा फैमिली में, उसके बड़े भैया, ये सब लोग बोलते हैं कि बेटा तू यार बढ़िया, हम लोग ने तो सोचा नहीं था कि ये सेगमेंट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग तो व्हीकल फाइनेंसिंग में थे, एसेट फाइनेंसिंग में थे, ये के बारे में सोचा ही नहीं था। अब घर में बहुएं हैं, उनके साथ कुछ नया सोचना शुरू कर दिया। अरे आप कॉन्ग्लोरोमेट बन गए, ऑटोमेटिकली कॉन्ग्लोरोमेट बन गए। उनके फैमिली में से एक बंदे को उन्होंने बोला कि तू पीआर का काम हैंडल कर, क्यों, क्योंकि अभी हमको विजिबिलिटी चाहिए। फैंटास्टिक। तो वो बंदा अलग अलग जगह पे जाके बातचीत करता है, ही गोज टू IIMs टू टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर हर जगह पे अपना नाम नहीं लिखता है, अपना नाम नीचे आता है, ऊपर आता है कंपनी का नाम, दिस ग्रुप, ऐसा करके ग्रुप का नाम आया, फिर अपना नाम फिर बोलने जाता है। अपनी आइडेंटिटी को मैं अलग दिखाने का जरूरत ही नहीं है, मैंने उसको बनाया, उसमें मैं एक हिस्सा हूं, दैट्स इट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर ट्राइड, ऑनेस्टली बताना, है चीटिंग नहीं करना, नहीं तो फटकारूंगा, अंदर घुस के मारूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर ट्राइड टू बिल्ड हाउस ऑफ कार्ड्स? ट्राइड, मैंने इतना बोला, मैंने नहीं बोला बनाया। कृपा ने ट्राई किया है, पीयूष बंसल ने, अब पीयूष बंसल तो कंस्ट्रक्शन में है, तू ट्राई कर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू तो बना ही सकता है ना, मतलब तू तो वैसे भी जीनियस हो जाता है, मतलब तेरे को तो मालूम है इधर कितना लोडिंग नहीं होता है, ऐसा करके। चलो कोई नहीं, ठीक है, पीयूष बंसल हाथ उठाता है, नॉट अ बिग थिंग, वो तो वो कर ही लेगा। कृपा, हम लोग हाथ उठाए तो बात अलग है भाई, अपने को तो मालूम ही नहीं है उसका, इसमें वजन कहाँ आएगा, ऑल दैट। चलो ये छोड़ो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 जन का वोट आया। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद उसमें वोट ज्यादा आ जाए। How many of you have ever played the game called Jenga? हाँ, अभी बरोबर,
बरोबर 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 बरोबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। उसमें ऐसा होता है ना कि वो नीचे से निकालो फिर ऊपर रखो, फिर नीचे से निकालो फिर ऊपर रखो। हम बहुत सख्त मेहनत करते हैं ऐसा निकालने का कि अपना नहीं गिरना चाहिए। यस और नो? सामने वाले का गिरे तो अपने को तो पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, पर ऐसा बहुत मेक श्योर ऐसा करके निकालते हैं। आई होप यू गॉट द मैसेज। स्मार्ट हो तो मैसेज मिल गया होगा, स्मार्ट नहीं होएंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। पर मैं सेफ्टी के लिए बता देता हूं, हम लोग जेंगा के वो एक एक लकड़े का टुकड़ा है। इमारत हमारा पारिवारिक बिजनेस है। रहो उसी जगह पे एंड हमारे दम पे बिल्डिंग को और ऊंचा बनाओ। कोई नीचे आके तुमको मस्करी करेगा, रे गौरांग तू तो नीचे है, ऊपर देख, ऊपर तेरा जो चचेरा भाई है ना सब उसको देख रहे, तेरी क्या वजूद क्या है। गौरांग बोलेगा, ब्रो तेरे को मालूम नहीं, मेरे कंधे पे खड़ा है, मैं हीरे तो वो हीरेगा। एंड वो दिखता है इसलिए हम लोग का धंधा चलता है। ऑल collective effort. Smile on that statement and enjoy that smile. Enjoy that smile. पर यदि हम लोग गलती कर लेंगे, गलती किसी भी प्रकार की गलती, और थिंक कि नहीं मैं तो अपना कुछ करूंगा, अरे तुमको पूरा नया जेंगा बनाना पड़ेगा। कभी सोचा है? एंड फिर उसमें खुद के लोग नहीं होंगे तो बाहर के लोग होंगे। बाहर के लोग तो जब चाहे तब अपना टुकड़ा निकाल के ले गए, फिर गिर गया, फिर खड़ा करो, फिर गिर गया। अच्छा, फिर आजकल लोग बोलते हैं उसमें फंडिंग बाहर से मिल जाएगा, को फाउंडर मिल जाएगा। भाई को फाउंडर में सेम आत्मा थोड़ी ना है। रादर अपने धंधे में किसी को फाउंडर बनाओ, ढूंढो, आत्मा इकट्ठा करो, लेट्स ग्रो। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। ये वर्ड मेरा बहुत फेवरेट है, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि फैमिली बिजनेस वो जरिया है जिसमें कोई बंदा चाहे उतना ग्रो हो सकता है, चाहे इतना आगे बढ़ सकता है, और उसका कोई अंत नहीं है, कोई स्कोप एंड में नहीं है। मतलब देयर इज नो, आई डोंट सी द एंडिंग लाइन इन दैट। दैट्स द होल point that I was trying to hint at. I'm going to help you with a very small concluding remark to explain my whole thought process. This is one thing. Family business is a gift. अरे कहाँ चेंज हो गया भाई? Family business is a gift, is a legacy, is a source of learning, is a sea of opportunity, and has limitless scope to experiment. Has limitless scope to experiment. हम लोग इन वर्ड्स को समझे, इसके डेप्थ को समझे, तो फैमिली बिजनेस फ्यूचर के जनरेशंस के लिए शायद कलेक्टिव एफर्ट्स का बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। एंड यू गाइस शुड फील ब्लेस्ड, यू आर पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इकोसिस्टम कॉल्ड फैमिली बिजनेस। You can, and if you aspire, you can be a very, very definitive contributor to this entire majesty of family business. With those words, guys, I wish you all the best. Have a great time. Have a brilliant future. God bless you. And may you grow as great as possible. And इस दुआ and इस wish के साथ कि we hope to see as soon as possible. I wish you all the best. Have a great time, guys. I'm open to taking any questions if anybody of you has any. Any questions you have, you're free to ask any question as of right now. Okay. If not, Deepal madam, are you there? We can end this session in case there are no more questions. Yes, sir, I'm there. Hello, sir. Yes. So, as in particular, I don't have any question, but sir, can you share your email ID with us?
पण कौन बोल रहा है भाई, मेरे को तो तो पता ही नहीं। कौन? समृद्ध अग्रवाल. Sir, it's Samrit Karan. Yes, हाँ, तो मैडम आप इनको ईमेल Yes, sir, एड्रेस, I'll do it. Yes, sir. यस प्लीज आप ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, एनीबडी एल्स? Hello, can you hear me, Mr. Samish? Yes, very much. Yeah, I'm sorry, there's some setting issue. That's why I could not on my video. I'm Tanveer Nathani. I'm running my family business. I'm 48 years old. We are importers in ocean glassware for Maharashtra and Goa. My son, who's just 17 years old now, and I decided that he should first join my business for a year, as he was born and brought up in Bandra. So Bandra में आप जानते हैं जो तरीका है रास्ते का, and my office is at Mohammad Road. So Bandra, born and brought up in Bandra. Mohammad Road पे तो वही रास्ते पे हाथगाड़ी भी चलती है, आदमी भी चलता है, टाइम टाइम पे वही ट्रक भी चलता है. So I thought I will give him 1 year experience with my business and then join your course. So unfortunately, I got some message that you have to be a graduate. Yes. समीश जी, अगर ग्रेजुएशन वो करते हैं ना तो फिर उनका 5 साल जो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज वो ग्रेजुएशन का पढ़ाई वो मेरे धंधे में काम नहीं आती। उसके लिए तनवीर जी मैं आपको एक छोटा सा गाइड कर दूंगा जी। वी हैव वन कोर्स दैट इज अलोंग विथ ग्रेजुएशन, वो करते रहेगा तो उसका फैमिली बिजनेस में डेप्थ और बढ़ता जाएगा। एंड देन सी, क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है इट्स अ पोस्ट ग्रेड कोर्स, तो ऑब्वियसली मैं उसको 18 ये मतलब ये अंडरग्रेड के बिना ले नहीं सकता हूँ। बट एनीवेज आई विल हेल्प यू एंड गाइड यू टू द एंटायर प्रोसेस, जिसमें उसका इंडक्शन और भी अच्छे से हो जाएगा। ओके, और भी अच्छे से हो जाएगा, आप लीस्ट वरीड रहिए। आपका फोन नंबर दीपल मैडम, तनवीर जी का फोन नंबर आपके पास है दीपल मैडम? Yes, sir, I have. तो आप एक काम करिएगा, उनका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मुझे दे दीजिएगा, मेरा कांटेक्ट उनको दे देना, हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करके एंड कर देंगे। Okay, तनवीर जी, डोंट वरी, विल मीट अप एट एनी पॉइंट ऑफ बस मेरा खाली पर्सपेक्टिव ये था कि वो ये कोर्स 1 साल के बाद ज्वाइन कर ले, एज इज 18, सो बाय द टाइम ही नोज कि जब आप लोग कुछ पढ़ाओगे तो उसको इंटरेक्ट करने का जरिया मिलेगा। And we both are great fans of you and your entire faculty. Thank you very much. जी, thank you very much. Hi sir, sir, can you hear me? Yes. Sir, this is Gursahaj Oberoi. I'm from Bombay, and I'm in my family business of automobile parts manufacturing. Okay. Sir, I'm yes. I'm highly considering this course this year. And I would actually like to come and meet you or the faculty advisor or program head for this course on campus, if that's possible, sir. You can, if you want to meet me, so I am at the campus. I can be at the campus on 9th, because tomorrow also I have my classes and everything. So campus I can meet you on 9th. Okay. If you want to meet me. Yes. If you meet who's our seller, then you can talk to her. दीपल मैडम, आप जब अवेलेबल है उस दिन आप गुरसेज को बुला सकते हैं। ठीक है सर, I'll be in touch with ma'am about the same. Yes, sir. Yeah, absolutely. Thank you so much, sir. Thank you. Good afternoon. My name is Prithvi. Yes, Prithvi. So firstly, thank you for this amazing session, sir. If not nothing, this was at least an eye-opener for me to have a vision for my family business. We are real estate developers, sir, and I have been associated with my family business for the past 2.5 years now. I graduated and then I came back to India in the year 2018, and since then I have been associated with my family business with no knowledge of any technical aspect of my business, which is construction, real estate. I have a question to you, sir, and with all due respect, this is a question which I am currently facing. This is a scenario which I am currently facing. So I'm just going to pull up an example from my family business experience. I am looking for you to guide me to help me take an appropriate decision where I'm currently feeling stuck. So it's a real estate business we operate in, and
post-COVID, this sector has experienced a good amount of hit. And because we have experienced this hit, there are a lot of decisions which sway in the family. Because the amount of money that comes in is limited, it is not like before. And the decisions have to be taken in a very curtailed manner. For example, I received a check of 10 lakh rupees from a customer today, for example, and that 10 lakh rupees has been deposited in the company account, and that amount has been credited to the company account. Now, me and my father, we discuss where to use these funds. My question to you here is, sir, most of the times I am unable to tell my father that, Dad, can we use 5 lakhs of this into the construction aspect so that we build the business, so that we get more revenue from that? क्योंकि हमारे business में जो दिखेगा वही बिकेगा, sir. We have to showcase work. So my question to you here is that most of the times in the family business, there is an emotion that comes into play. मैं अपने father को मना कैसे करूं? My father says, नहीं बेटा, we have to make a payment to somebody. हम 6 lakhs वहाँ देंगे, 4 lakhs आप business में लगाएंगे. तो sometimes I am in a dilemma कि यार मैं business की सुनूं या मैं अपने father की emotion की सुनूं. If I listen to the emotion, I make a wrong decision in the business. If I listen to my business, मैं धंधे की बात सुनूं, तो शायद उसका outcome सही हो, शायद गलत हो. That time will tell. My question, I repeat here, is that what do I value more in a segment like family? Do I listen to my emotion here, or do I listen to my business here? Okay. Basically, तो पहले I want you to understand that don't separate both of them. Okay. Because a family business is run by emotions. Okay. Okay. Logic comes little later. Okay. Yeah. And I'll tell you why also. But let us first address your question. So in that case, when your father says that let us make the payment partially and this much amount goes here, whereas you want to give away a little more amount to the family business and little less on the other side, I will look at largely from your father's perspective. Okay. And I'll tell you why. So that is one lesson that we teach to all our students on the first contact, first day only. That we have to start learning with the question, why is my father or my mentor behaving the way they are behaving? So what happens is, why are they taking this decision? Say, for example, he is trying to make sure that is it about maintaining the relationship with that party, number one. Number two, if I'm giving the check and honoring the commitment, is it going to add the goodwill? Number three, is it about something else? I don't know. So I will go deep down asking him कि साहब क्यों अभी इनको पेमेंट कर रहे हैं? And he has a very good reason to tell also. And then we say कि पापा इसमें से हम partial payment करके बाकी का पैसा इधर डाइवर्ट कर सकते हैं? बोले नहीं, ये partial payment नहीं हो सकता है. अच्छा, वो भी क्यों नहीं हो सकता है? Then he says कि ये reason है. What happens, पृथ्वीराज? I'll give you one simple thing. अपने एक बच्चा है और वो बोलता है कि पापा मुझे ना ये दे हैड सम केमिकल और उसको डाइवर्ट कर रहा था एक पार्टी को. उसके फादर ने बोला कि ये पार्टी को तुम अभी मत डिलीवर करो, यू हैव टू डिलीवर टू एक्स पार्टी. बोलते पर पापा ये वाई वाला एडवांस दे चुका है. बोले वाई वाला एडवांस दिया है फिर भी उसको तो अभी डिलीवर नहीं करेगा. बोले पापा एडवांस वाला है. बोले एडवांस वाला है लेकिन पार्टी फर्स्ट टाइम हमारे पास आई है इसलिए हमने एडवांस दिया है. उसकी गरज थी उसका क्रेडिबिलिटी प्रूव करने का. लेकिन ये जो एक्स वाली पार्टी है वो हमारे साथ पिछले 25 साल से जुड़े हैं. इन ऑल गुड एंड बैड टाइम्स उसका पेमेंट हमेशा टाइम से आता है. माल जाता है उसका 30 डेज में पेमेंट आ जाता है. दिवाली में फोन करते तो पेमेंट आ जाता है. उसको माल डिलीवर होना चाहिए. ये तो नई पार्टी है. हम नए को साथ हाथ रखेंगे लेकिन इसको लटका देंगे तो हमारा इसके साथ रिश्ता बिगड़ जाएगा. ये नए का तो कोई भरोसा भी नहीं कि कितने टाइम तक हमारे पास रहेगा. तो पहले तुम इसको डिलीवर करोगे. बच्चा आके मेरे को बोलते हैं सर पापा गलत है. सर मैं नई पार्टी को कितनी मेहनत से लेके आया. तो एक बात बता बेटा, पप्पा गलत है ये आक्षेप गलत है. तेरा पॉइंट राइट है, आई रिस्पेक्ट दैट. पर पप्पा गलत है ये रॉन्ग है. व्हाई ही इज डूइंग दिस इज बिकॉज इसने ऐसा बोला. अब तेरे को पप्पा को ये बताने का है कि पप्पा यहां से मैंने कमिट किया है इतने दिन का डिलीवरी. आपकी ये एक्स पार्टी को दे दो नो प्रॉब्लम.
is there a way by which we can get this product delivered to this person in this time frame, ताकि मेरा भी बच जाए, आपका भी सही हो जाए, और ये बंदा अपने पे लॉन्ग टर्म पे भरोसा कर सकता है, नई पार्टी भी भरोसा कर सकती है. Then you are talking about balancing a business and decision making. उसने बोला हाँ सर मैं बात करता हूँ. उसके फादर ने बोला ये आइडिया अच्छा है, अपने ही ट्रेड का एक आदमी है उधर, मैं उसको बोलता हूँ तेरे पास यदि वो कंटेनर खाली पड़ा है कोई भी कारण से, या तेरा डिलीवरी का थोड़ा टाइम है, तो मैं डायरेक्ट डिलीवर करवा देता हूँ. चल एक काम कर, थोड़ा फोन काट, मैं उससे पूछता हूँ. एंड एक्चुअली डिड दैट, क्योंकि यू अंडरस्टैंड ट्रेड में तो ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं ऐसा. बेसिकली क्या होता है पृथ्वीराज, राइट और रॉन्ग पे मत जाओ, ये सोचो कि कोई बंदा क्यों ऐसा कर रहा है. एंड स्पेशली जो मेंटर लोगों ने बिजनेस बनाया है इतने सालों में ना, उनके पीछे उनके सॉलिड रीजंस होते हैं. ऐसे रीजंस जो शायद मेरे को तेरे को कभी डाइजेस्ट नहीं भी होते हैं, कभी कभार डाइजेस्ट हो भी जाते हैं. बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग उनका पर्सपेक्टिव को समझते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग और भी स्मूथ हो जाता है. तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, मैं तेरे को रियल एस्टेट का ही एग्जांपल देता हूं, फरीदाबाद का, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, गाजियाबाद. अपना ही स्टूडेंट है, उन लोग की 3 साइट चल रही थी पैरेलल, विच इज अ नॉर्मल थिंग. आपके सिनेरियो में तो बहुत नॉर्मल है, 3 क्या 5 भी चल सकते, 15 भी चल सकते, डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ. पेमेंट आया मेरी साइट से, तो टेक्निकली जब मेरी साइट से पेमेंट आया है तो मेरी साइट के खर्चे को ऑनर करना चाहिए पहले. पप्पा ने वो पेमेंट लेके मेरे बाकी 2 को ऑनर कर दिया. मैंने उनको बोला पापा ये गलत है पापा, मतलब आया 35 लाख यहां से आपने इन दोनों को दे दिया, अब मेरी पार्टी है ना बूमा बूम करेगी, उसको तो मालूम है पेमेंट आ गया. उसका पापा बोलता है तू नहीं समझेगा, मैं उधर एक्सीडेंटली बैठा था, कोई करंट से आई वाज देयर, मैं बेटा शांत, मनीष भाई इसको समझाओ कि क्यों आपने ऐसा किया. अरे पर दलाल सर ये समझ, आप मेरे को समझा दो, मैं इसको समझाऊंगा, पर आप समझाओ. इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को इसको डिसीजन लेना आएगा तो वो आपके जैसा नहीं सोच पाएगा, तो गलत हो जाएगा ना. अरे दलाल सर वो एक एंट्री का था ना, ये था ना वो था, नहीं एक्सप्लेन टू मी द होल सिनेरियो. बच्चा वहीं पे खड़ा था, उसने मेरे को बोला हाँ सर नो नीड टू री एक्सप्लेन मी, मैं समझ गया. सी नो नीड टू री एक्सप्लेन. एंड आई थिंक इतना तो कैपेबिलिटी हमारा हर बच्चे में है. मेरे को बाहर निकल के बोलता है, उसने मेरे को एक मस्त चीज बोली, बोलते हैं सर पापा पहले से यदि मेरे को ऐसा बता देते तो दैट्स ओके. वो नहीं बताया कोई बात नहीं यार, कुछ पापा होते हैं ऐसे कि वो बाद में खुलते हैं, ठीक है, दैट्स ओके. वो बताया तो सही ने, बोले हाँ अभी मैं सर क्लियर हो गया हूँ, अभी ठीक है मैं वहां पे हैंडल कर लूंगा, मैं वहां पे हैंडल कर लूंगा. So honestly Prithvi, my stand would be I would go by what your father says. in फिर भी मैं 2 आर्ग्यूमेंट करूंगा, जैसे मैंने बोला कि पापा 50% पेमेंट करके या थोड़ा ऐसा अटका के थोड़ा डाइवर्ट करके, फिर भी यदि वो ना बोलेंगे तो मैं रीजन यदि बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो राइट नाउ आई विल गो विथ हिम. उसका एक दूसरा पॉइंट भी है बेटा, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि लास्ट 2 years वर बैड, और उसमें कोविड ने तो उसको और भी बैड कर दिया अपनी इंडस्ट्री को. इस टाइम पे जब थोड़ा भी पेमेंट आता है ना, तो फादर बहुत सारे कैलकुलेशन करके बैठे हैं. उनको तो एक्चुअली ये भी स्ट्रेस है कि साला इस धंधे को अपन पुल थ्रू कैसे करेंगे, क्योंकि इतने क्राइसिस एक साथ चल रहे हैं. सो यू नो उस टाइम पे उनका जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो थोड़ा डिलेमेटिक परिस्थिति में भी जाता है. इसलिए एट दोज पॉइंट्स हमें उनका सपोर्ट करते करते डिसीजन की तरफ लेके जाना है, सपोर्ट करते करते डिसीजन की तरफ लेके जाना है. इट्स लाइक छोटा बच्चे को जब चोट लगती है तो मम्मी पता है बैंडेड कैसे लगाती है ना, थोड़ी फूंक मारती है, मम्मा बहुत जल रहा है, फिर डेटॉल लगाया, मम्मा बहुत जल रहा है, फिर डेटॉल थोड़ा लगाया, बहुत जल रहा है, और फट लेके फिर बैंडेड लगा देगी. मम्मा बहुत जल रहा, बेटा पण तेरे को एक दिन में अच्छा हो जाएगा. आज हमारे पेरेंट्स लोग इस क्राइसिस से जब पार हो रहे थे ना, तो उनको वो चोट लगी थी. मैं सबको बोलता हूं जब मेरे सेशन में कि पोस्ट कोविड एवरीबडी विल सेल थ्रू डेफिनेटली, लेकिन स्लाइटली या मोर इंजर्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंजर्ड.
करेक्ट। तो उसमें एक फैमिली दूसरे को ऐसे करेंगे, रमाकांत साहब चिंता मत करना, सही हो जाएगा, फिर लगा दो बैंडेड। 1 साल के बाद यही एंटरप्रेन्योर ऐसा स्प्रिंग की माफिक उछलेगा और ऐसा नया हाइट अचीव करेगा, अपने को भी लगेगा मेरा पापा आप वही है। बोले हाँ बेटा, वो थोड़ा चोट लग गई बेटा, ये 2 साल थोड़ा खराब गया, तू टेंशन मत कर, तेरे बाप में वो अभी जिग रहा है, ऐसा 5 बिल्डिंग तो मैं ऐसे खड़ा कर दो, 5 मिनट में मिक्सर बना के पी लूं। ये क्या कोविड तेरे बाप को हिला नहीं सकता बच्चा, ऐसा करके स्पिरिट भी आ जाएगी। बट इस पीरियड में ना वो चोट वाला पीरियड है, फूक मारो, सही हो जाएगा। Thank you, sir. Thank you. Okay. All right. Thank you very much, guys. Wonderful participation. Thanks, Prithvi, for a fantastic point that you brought out. And I sincerely appreciate that type of a questioning also. And तेरे को पता है हम लोग क्लास में इसी तरह के क्लासेस चलते रहते हैं। ये दीपल मैडम जो अभी हंस रही है, तेरे को पता है वो हंस इसलिए रही है क्योंकि उसका मेरे को बाजू में मैसेज आता है, सर आपने 11 से 12 का बोला था, अभी उसका बच्चा है ना बहुत छोटा है, सिर्फ 1.5 साल का है, तो चिल्लू पिल्लू पीछे आवाज भी कर रहा होगा। ऑब्वियसली संडे मम्मा फिर भी काम कर रही है, तो ये चीजें है ना। क्लास में ये बोलती है सर आपका क्लास 1 बजे खत्म होएगा, क्लास में आती है सर, सब लोग भी बोलते हैं हाँ मैडम 2 मिनट, एंड हमारा 1.25 1.5 पौने ऐसे हो ही जाते हैं। बहुत बार, इतनी बार हुआ, राइट दीपल मैडम? Yes, sir, right. 2 बजे के जो फैकल्टी आने वाली थी वो बेचारा आके बैठा भी होता है और फिर बोलते हैं कि आगे क्लास चल रहा है, थोड़ा डिले हो गया, वो भी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। But that's the excitement of the class that happens and it goes like that. Okay. Anyways, thank you very much, guys. Have a wonderful time. Have a brilliant Sunday going forward, and hoping to see every one of you in the class. Okay. Have a great time, guys. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.